Assalamualaikum everybody. Thank you for joining us. I'm really excited because finally जो है, we have got cricket back. And अभी recently हमने England versus West Indies की series भी देखी थी. Quite an interesting series considering the way it started. I mean, you're talking about West Indies winning the first test, फिर England ने come back किया. Some of their new players, well, relatively new players, they did well. फिर स्टोक्स की परफॉर्मेंस सबने देखी थी, स्टुअर्ट ब्रॉड. सो ऐसे लग रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड की टीम फॉर्म में आ गई है, ऑब्वियसली जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया. बट अब द रियल टेस्ट इज फॉर द पाकिस्तान टीम बिकॉज द फर्स्ट टेस्ट मैच स्टार्ट on the 5th of August, and it is going to be an exciting series because if you look at Pakistan's record, they are one of the teams who've done reasonably better, I would say, than the other teams that have toured. I mean, the last 6 test matches that Pakistan has played, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, 50%. जहां उनको wickets suit की हैं, they've done really well. So I'm really looking forward to this series. But of course, it's a slightly different Pakistan team that's touring this time in terms of the combination that they're taking in the squad. And England की टीम में भी कुछ नए नाम हमें नजर आ रहे हैं, जिस तरह के हमने अभी देखे ही हैं. Of course, उनका bowling attack तो more or less वैसा ही है जैसे कि पहले था. But definitely मेरा ख्याल से मजे की सीरीज होगी, and we're all looking forward to it. And because we're talking about the series and because we're talking about Pakistan cricket, so I've got 2 people here with me who are actually synonymous with Pakistan cricket in very different ways. Of course, Bajaz Khan is there. He's become the voice of Pakistan cricket now. जब भी कोई पाकिस्तान खेल रहा होता है तो you hear him on commentary, but not just commentary, also his very spot on analysis. I have to say कि on air शायद इतनी वो predictions का मुझे नहीं पता, but off the air उनकी predictions जो हैं बहुत सही होती हैं, and वो आके एक आध इतना comment जरूर छोटा सा मार देते हैं कि ये होगा और फिर वैसे ही होता है. And then of course I've got Mazhar with me. Apart from being a dear friend, he's also just excellent at what he does. I think अगर पाकिस्तान में कोई stats guru है, so that's Mazhar that we've seen over the years. He's worked with different broadcast teams. He's never in Pakistan. I think अब जाके हम उसको पाकिस्तान में देख रहे हैं. But his insight is always useful, and that's why I've got him on board for today's show, because I thought कि कोई interesting हमें stats पता चले पाकिस्तान इंग्लैंड के ऊपर, players के ऊपर, apart from the obvious ones, and of course I'm not an expert in that regard. First of all, thank you very much to both of you. I know कि तुम लोगों ने अपना time निकाला है, सब अपनी अपनी एक schedule में जो है busy हो गए. But Bajaz, I want to start talking about how there's been we've all been sort of deprived of sports, but I think over the last month or so, aista things are sort of resuming in their own different ways with protocols and SOPs. चाहे वो football हो या cricket हो. Cricket we saw in very surreal conditions. We saw West Indies play England in the sense कि कोई crowd नहीं था, and there are so many other SOPs जो कि follow की जा रही थी. So we're glad कि at least कोई sports तो वापस आई है. हाँ बिल्कुल, घर बैठे बैठे शायद आपके घर वाले तो तंग ना हुए हों, मेरे घर वाले तो काफी तंग हो गए थे. मजहर के भी मेरे ख्याल उतनी देर वो कभी घर बैठा नहीं है ना मैं बैठा हूँ. तो यस, स्पोर्ट्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट. और द वन थिंग के जब टेस्ट मैच शुरू हुआ है तो शायद मेरे दिमाग में था कि कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन वो एज अ टीवी व्यूअर आपको इतना बुरा नहीं लगा. थोड़ी आदत होने की बात थी कि चौका लगेगा तो तालियां नहीं बजेंगी, बट अदरवाइज कोई वंस इट स्टार्टेड, वंस वो खेलना शुरू हो गए तो टीवी ऑडियंस आई थिंक डिड नॉट माइंड के ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन मच बेटर के क्राउड होता, लेकिन टीवी ऑडियंस को इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा बिकॉज ऑफ दैट. और क्योंकि टेस्ट मैचेस भी अच्छे हो गए तो मेरा ख्याल इट वेंट अलोंग रियली वेल. Mazhar, what do you think? I mean,
डिफरेंट ऑब्वियसली कंडीशंस में क्रिकेट खेली जा रही है. वी आर नॉट यूज्ड टू दिस. शायद हमने वो एक पीएसएल का मैच था जो किया हो जिसमें कि कोई क्राउड नहीं था. बट आई मीन डू यू थिंक कि प्लेयर्स पे भी कोई किसी किस्म का डू यू थिंक इम्पैक्ट होता है कंसिडरिंग कोई क्राउड नहीं है कुछ लाइक ऑब्वियसली पीछे अगर हम नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल हमने मैचेस देखे हैं बर्मिंगम में एजबास्टन में जहाँ पे इतना शोर होता है एंड यू नो द प्लेयर्स आर पम्प्ड एक डिफरेंट किस्म का प्रेशर है. सो मगर अब डू यू थिंक वो एक कोई फैक्टर है एट ऑल? देखें पहले तो जो बाजिद भाई ने बात की है ना कि वो कहते हैं कि थोड़ा डिफरेंट नहीं लगा, तो उसकी एक वजह ये है कि वो 7-8 सालों से हमारा माइंड ट्रेन हो गया हुआ है स्पेशली यूएई में क्रिकेट कवर कर करके. तो वहां पे मोस्टली ऐसे ही मैचेस होते थे कि उसमें क्राउड नहीं होता था. लेकिन इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि इतना फील नहीं हुआ जो कि सोचा जा रहा था कि बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा. और उसमें आई थिंक थोड़ा सा क्रेडिट स्काई की प्रोडक्शन को भी जाता है कि जिस तरीके से वो क्राउड की वॉइस को बीच में लेकर आए थे और जो उन्होंने एम्बियंस क्रिएट किया, आई थिंक उससे भी हमें कुछ ज्यादा चीजें फील नहीं हुई कि हमें क्राउड का वो एक बेशक एक चीज फेक थी लेकिन वो हमें कुछ क्राउड की आवाज जो है वो आती गई मैच के दौरान. बाकी ये बात ठीक है कि कुछ ज्यादा अगर आप सिर्फ टीवी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ ज्यादा हमें डिफरेंट नहीं नजर आया. लेकिन जहां तक बात है क्राउड के सपोर्ट की, आई थिंक जो पहला टेस्ट मैच था जो कि इंग्लैंड हार गया, आई थिंक कि अगर उसमें क्राउड होता, अगर क्राउड का सपोर्ट होता पीछे, तो वेस्ट इंडीज जिस तरीके से एक छोटा टारगेट चेज करते हुए उनके 2-3 अर्ली आउट हो गए थे, तो मुझे ये लग रहा है कि अगर वहां पे क्राउड होता तो हो सकता है कि इंग्लैंड वो वाला टेस्ट मैच भी जीत जाता. So you were saying that it could have been a deciding factor. Bajid, you know, moving on to the actual series जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड हमेशा ही बहुत अच्छी मजे की सीरीज होती है. I mean, हमने कवर भी किए हैं, हम वहाँ पे थे भी, जनरली देखा भी है. हमेशा you can never really write them off because वो होता है ना कि पूरी सीरीज नहीं जीतते लेकिन इधर जीत लिया उधर जीत लिया. You know, generally एक कई केसेस ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी हमें नजर आती है. पिछले you know जो मैं पढ़ रही थी 2011 से सबसे अच्छा रिकॉर्ड पाकिस्तान का रहा है एज एन ओवरसीज टीम इन इंग्लैंड. सो ये एक फैक्टर है. बट देन यू गॉट इंग्लैंड हु केम बैक रियली स्ट्रांगली आफ्टर दैट परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट टेस्ट मैच. सो आई मीन ये सिचुएशन है, मजे की होगी सीरीज. हाँ देखें, इंग्लैंड में पाकिस्तान को ये फायदा जरूर होता है कि व्हेनेवर वी गो ऑब्वियसली हमारा पेस अटैक अच्छा, सीमर्स अच्छे होते हैं. पेस अगर ज्यादा ना भी हो, सीम बॉलिंग हमारी काफी अच्छी होती है. तो आपने पिछली दोनों सीरीज जो भी कहे हैं, बैटिंग दोनों की टीमों की मतलब फ्रेजाइल तो नहीं कहूंगा लेकिन वो टॉप क्लास नहीं है. सो व्हेन यू हैव अ कंडीशन वेयर जहाँ पे बॉल थोड़ा सीम हो रहा है तो पाकिस्तान के सीमर्स होते हैं. और जहाँ पे ड्राई पिच हो और आखिरी दिन या चौथे दिन मैच जा रहा है और जहाँ पे स्पेशली अगर आप लंदन में खेल रहे हैं तो वहाँ पे अमूमन ऑन द 4th-5th डे स्पिनर को सपोर्ट ऐसे होती है कि थोड़ा बॉल इनवेरिएबल वो बाउंस जो होता है वो ट्रू नहीं रहता. तो उसमें पाकिस्तान को एडवांटेज होता है. एक बात जो आई एग्री विद मजर, बारहवीं आर्मी नहीं है जो इंग्लैंड कहते हैं दैट्स देयर 12th मैन, तो वो उनका 12th मैन नहीं है. तो जब वो ऑब्वियसली ऐसी कंडीशन बनती है तो प्लेयर्स को अपने आप को ही लिफ्ट करना पड़ता है. तो इंग्लैंड के लिए तो पाकिस्तान तो चलो यूएई में खेलता रहा है, या पाकिस्तान में ऐसे भी टेस्ट मैचेस हुए हैं जहाँ पे क्राउड नहीं होता. आई थिंक इंग्लैंड की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे क्राउड नहीं है. But saying all that, the advantage England have now is that they have played international cricket, whereas Pakistan has मतलब काफी देर से अभी तक नहीं खेला हुआ. जो टेस्ट मैच खेलेगा वो उनका पहला इंटरनेशनल मैच होगा काफी देर बाद. और आपने भी टच अपॉन किया कि शायद पहले मैच में कॉम्बिनेशन इंग्लैंड की कुछ ठीक नहीं थी, थोड़े रस्टी नजर आए. दैट एवरीथिंग वाज ट्रू अबाउट दैट. मे बी वो जो टेस्ट मैच की सीरीज हुई है, और ऐसे भी नहीं हुआ कि टेस्ट मैचेस वन साइडेड हुए, तो थोड़ा कंपटीशन हुआ है उनको, तो शायद उनके लिए इट्स बेटर प्रिपरेशन. मगर ये तो डेफिनेटली उनको एडवांटेज होगा अगर इंग्लैंड की देखा जाए, बिकॉज ऑब्वियसली उनके 3 टेस्ट मैचेस हो गए हैं. पाकिस्तान इतनी देर से क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली नहीं. पाकिस्तान को वैसे ही टाइम लगता है एक्लेमेटाइज करने के लिए, थोड़ी सी
weather and all those things. Of course, we've been there for a while, but I'm talking about match practice. So, that's also going to be one of those things which will have a role to play. जी नो डाउट आई थिंक जो इंटरनेशनल क्रिकेट है या जो टेस्ट क्रिकेट है उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। इवन दो कि पाकिस्तान एक महीने से ज्यादा से इंग्लैंड में है, आई थिंक 40 डेज हो गए हैं और कुछ इंट्रा स्क्वाड मैचेस भी खेले हैं, उसमें से एक फर्स्ट क्लास मैच भी था। लेकिन ऑब्वियसली जो एक टेस्ट एक्सपीरियंस होगा इंग्लैंड को उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। और एक ये भी है कि आप देखें कि इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो मिस्टेक की थी स्टुअर्ट ब्रॉड को, अगर वो उनकी थी तो वो मिस्टेक पाकिस्तान के खिलाफ कर, तो लेकिन वो वाला एडवांटेज भी पाकिस्तान को नहीं होगा क्योंकि इंग्लैंड को पता चल गया है कि उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो आई थिंक ब्रॉड, एंडरसन, और अगर हम इन दोनों प्लेयर्स के अगर हम स्टैट्स की भी बात करें, जैनब आई थिंक आपने मुझे स्टैट्स को डिस्कस करने के लिए ज्यादा बुलाया होगा। तो ब्रॉड's average against Pakistan is 24, which is his best against any team, and same goes for Anderson as well. मगर ब्रॉड ने तो not just with the ball हमारे खिलाफ आई थिंक रन्स भी तो किए थे एक आइकॉनिक लॉर्ड्स का जो एक वो बदनामे जमाना मैच है जिसमें कि पाकिस्तान ने शुरू में ही इंग्लैंड के साथ आउट कर लिए थे, तो उसमें उनकी एक बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप हुई थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस बैट्समैन के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई थी जोनाथन ट्रॉट, वो इंग्लैंड के बैटिंग कोच बन गए। आज ही इंग्लैंड ने अनाउंस किया है। There's been a lot of talk around Stuart Broad's exclusion in the first test match. फिर उसके बाद कि जी उसके साथ ज्यादती हुई, he should have been first choice. There's been a lot of general discussion around that topic. और हुआ ये कि once he was left out, उसके बाद जब वो वापस आए तो he then went on to become like the highest wicket taker of the series. So my question is that क्या ये जरूरी है या क्या ये जरूरत होती है कभी कभार फास्ट बॉलर्स को और एनी काइंड ऑफ प्लेयर कि उनको थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर दिया जाए, और इफ नॉट ड्रॉप लेफ्ट आउट ऑफ द स्क्वाड और रेस्टेड, whichever way you want to put it, right? क्या ये जरूरी है कि ये प्लेयर, because he came back and it seemed like he was extremely motivated to prove a point there. So do you think that's necessary? I think एक तो उसको नाजायज, I think he should not have been dropped. उसका रिकॉर्ड इन इंग्लैंड मजर should confirm के पिछले साल एशेज में और जितने भी वो टेस्ट मैचेस अब इंग्लैंड में खेला है, he has been bowling really well और विकेट्स भी ले रहा है, सारा कुछ ठीक है। उसका पहले कुछ प्रॉब्लम हो गया था, फिर he went back, he worked out his length और सारा कुछ, but dropping him for the first test match, उसका अपना बयान है कि he was thinking of actually retiring. तो आपका सवाल ये है कि is it a good thing? अगर वो रिटायर हो जाता तो शायद पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाता, but for England it would have been a loss. नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, but because we're talking about England and जिस तरह से उन्होंने performance दी, Stuart Broad की आपने बात की कि कितनी अच्छी, like generally he is key, he's an integral part of their setup. तो अब एक जो प्रॉब्लम जो रहा है, तो इनकी बॉलिंग तो अगर देखी जाए तो काफी देर से relatively settled ही रही है, like they've had Anderson and Broad और क्रिस वोक्स हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ 26 विकेटें ली थी 2016 में। वो इतने नहीं वो है, लेकिन हम they have options to choose from. एक जो इनका एरिया जहाँ पे they have struggled in the past is actually their opening pair. जब से एलिस्टर कुक गए हैं तब से ही एक्सपेरिमेंटेशंस करते रहे हैं। they've had Jason Roy, they've had Alex Hales, बट अब इस अगर सीरीज को देखा जाए तो सिबली जो है, डॉन सिबली, he did really well for them. उन्होंने सेंचुरी भी की, फिर उनकी 50s भी थी, और जो बर्न्स थे उन्होंने भी लग रहा था कि जिस तरह के उनकी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं। सो डू यू थिंक दिस इज फाइनली एन आंसर टू देयर बैटिंग ओपनिंग पेयर वोज? देखिए, स्ट्राउस जब से गया तब से ये प्रॉब्लम है, कुक के साथ कोई ओपनर इनको मिला ही नहीं। मतलब यस, कुक जब गया तो फिर तो दोनों जगह खाली हो गई थी। 2016 के बाद पहली दफा है कि इंग्लैंड में सेंचुरी ओपनिंग स्टैंड हुआ है, इंग्लैंड के ओपनर्स ने सेंचुरी ओपनिंग स्टैंड किया है। तो द नंबर्स मतलब दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। बट एक जो शिफ्ट हुआ है इन कोचिंग में, रहल जो कोचिंग उनकी माइंडसेट है उसमें अब उन्होंने शिफ्ट किया है कि वी नीड टू क्राफ्ट, वी नीड टू बैट द ओवर्स, वी नीड टू बैट longer rather than
जो ट्रेवर बेलिस का ओपिनियन था कि हम तेज खेलें और तेज रन्स करें और उस तरह मैच अग्रेसिव, मतलब अल्ट्रा अग्रेसिव क्रिकेट खेलें। अगर आपको याद हो तो जब ये स्ट्राउस और एलिस्टर कुक ओपन करते थे तो जॉनथन ट्रॉट आते थे नंबर 3। तो आप अगर इन तीनों का देखें तो रिलेटिवली मतलब सॉलिड प्लेयर्स थे। यस दे weren't फ्लैम्बॉयंट, लेकिन सॉलिड प्लेयर्स थे। तो वो जो माइंडसेट था वो तब भी जब ये नंबर 1 बने तब भी ऐसा ही माइंडसेट था। एंड फॉर some, if you want openers to be ultra मतलब अटैकिंग और उस तरह के, then you need the player who can do that। और वो इंग्लिश कंडीशंस में बड़ा मुश्किल होता है। मुझे याद पड़ता है सहवाग जो कि हर जगह रुकता ही नहीं था, वहां इंग्लैंड में जाके स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि नया बॉल बड़ा मुश्किल होता है, एक तो सर्वाइव करना, ऊपर से उस पे शॉटे मारना। तो आई थिंक देव नाउ शिफ्टेड के चलो अगर ये मतलब रन रेट इनका ज्यादा नहीं होता बट एटलीस्ट ये कुछ ओवर्स खेलते हैं तो इनके पास लोअर ऑर्डर में ऐसे प्लेयर्स हैं who can always increase the tempo and till now it's working। आई थिंक पहली दफा ऐसे है कि इंग्लैंड एक सीरीज में जा रहा है और उनको कंफर्म्ड है कि ये हमारे ओपनर्स हैं। तो यस दे माइट बैट स्लोली, यस वो शायद उस तरह के मतलब देखने में इतना अच्छा ना लगे, शायद वो रन रेट उनका इतना तेज ना हो, लेकिन जो उनको जॉब दिया जा रहा है वो तो पूरा कर रहे हैं। नहीं, आपने एक्चुअली सहवाग वाली बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा है बिकॉज ही वाज समबडी हु वाज जनरली वेरी सक्सेसफुल अराउंड द वर्ल्ड। मगर कोई ऐसा इंग्लिश कंडीशंस में डू यू हैव एनी प्लेयर इन माइंड? नहीं, ये बाजिद भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि वहां पे जो इवन जो बहुत अग्रेसिव ओपनर्स भी होते हैं, उन्हें सहवाग की एग्जांपल दी। एक और जो इसमें नाम ऐड हो सकता है वो डेविड वार्नर है, वो भी एक बड़े अग्रेसिव बैट्समैन है। लेकिन आप देखेंगे लास्ट ईयर उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था एशेज में और इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में, इवन न्यूजीलैंड में भी जहां पे बॉल हिलता है वो वहां पे स्ट्रगल करती हैं। तो ऑब्वियसली आपको जरा वहां पे ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं, ऐसे ओपनिंग बैट्समैन चाहिए होते हैं जिनकी टेक्निक अच्छी हो, जो बॉल को मतलब सी ऑफ कर सकें। तो आई थिंक जिस तरह हमने बात की अभी ओपनिंग पेयर्स की, तो इंग्लैंड ने काफी ज्यादा उन्होंने चेंजेस की थी और लास्ट 5 सालों में 17 ओपनिंग पेयर्स इंग्लैंड ने ट्राई किए हैं, व्हिच इज द हाईएस्ट फॉर एनी टीम इन द वर्ल्ड। तो अभी ये लग रहा है थोड़ा सा वो सेटल्ड हो रहे हैं विद टॉम सिबली एंड रोरी बर्न्स। अगर हम इनकी स्टैट्स की बात करें, इन दोनों की जो एवरेज है वो 43 है। अब 43 इंग्लैंड की कंडीशंस में बहुत अच्छी एवरेज है फॉर एन ओपनिंग पेयर। इट इज इवन बेटर देन एलिस्टर कुक एंड एंड्रू स्ट्राउस, इवन दो द सैंपल साइज माइट बी स्लाइटली स्मॉल। तो एंड क्योंकि हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं तो अब मेरा ख्याल से थोड़े से पाकिस्तान के बॉलर्स पे भी आ जाते हैं। इंग्लैंड की तो हमने डिस्कशन की ही है। बाजिद, लास्ट टाइम जब पाकिस्तान आया था तो आपके पास अब्बास था, आपके पास आमिर था, फिर फहीम अशरफ भी बॉलिंग करा रहे थे उस वक्त अच्छी थोड़ी सी, उन्होंने भी उनकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन थी, फिर यासिर शाह, शादाब खान। इस दफा आपके पास थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस कहा जाए बॉलिंग लाइनअप होगा, बिकॉज अगर आप देखें कि हाउ मेनी फर्स्ट क्लास गेम्स डू दे हैव अंडर देयर बेल्ट, और इफ यू लुक एट कितना उनका अभी कितनी रीसेंट प्रैक्टिस रही है, तो उस तरह से कोई इतना वो नहीं रहा। और ऑस्ट्रेलिया में हम देख चुके हैं इन कुछ बॉलर्स को। तो ये सारी चीजें रखते हुए दिमाग में रखते हुए, सामने रखते हुए, डू यू थिंक कि ये जिस तरह से हम हमेशा एक अच्छा तगड़ा बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का, ऑब्वियसली अगर आपने जीतना है तो 20 विकेटें तो आपको चाहिए, तो अगर वो हम ले रहे थे, डू यू थिंक इस लाइनअप के पास वो कैपेबिलिटी है? आई थिंक जो आपकी फास्ट बॉलिंग है उसको अगर कंड्यूसिव कंडीशंस मिली तो जरूर एबिलिटी है। लेकिन जिस तरह वेस्ट इंडीज सीरीज थी, आपने देखा कि व्हेन यू हैव बैक टू बैक टेस्ट मैचेस तो आपकी फिटनेस बड़ी टेस्ट होती है। और आपने देखा कि आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट मैच देयर क्वालिटी ऑफ बॉलिंग वेंट डाउन फर्दर, थर्ड में और नीचे चली गई क्योंकि उनके पास चौथा फास्ट बॉल मतलब एज इन दे कुड नॉट रोटेट एज इंग्लैंड डिड। नसीम शाह का पहला टूर है, वो पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेलेगा। आई थिंक उसके लिए बड़ा टेस्ट होगा। अगर वो, आई विल बी वेरी सरप्राइज कि अगर वो तीनों टेस्ट मैचेस निकाल जाता है और उसी इंटेंसिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है विद 3-3 दिन के गैप्स हैं, प्लस एनवायरनमेंट जो है, द एनवायरनमेंट आल्सो विल प्ले एन इफेक्ट, क्योंकि
अब देखें 29 लोगों के साथ, बल्कि चलें मैं अगर टीम मैनेजमेंट भी आप लगा लें तो you're in the same conditions all the time. ये भी नहीं है कि आप बाहर जाके खाना खा सकते हैं, ये प्रेशर रिलीज नहीं होता। मैच खत्म होता है, आप होटल में आते हैं, होटल से आप बाहर नहीं जा सकते। देयर इज नो, जिस हर कोई अपने तरीके से क्रिकेट से दिमाग हटाता है या प्रेशर रिलीज करता है, वो नहीं होगा। तो हाउ दे विल कोप विद दैट विल बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि दीज आर नॉट एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स। दिस इज द सीरीज जिसमें सिर्फ क्रिकेट हो रही है। दिस इज सीरीज जिसमें आप बिल्कुल ही बंद हैं। हम तो घर पे बैठे बैठे तंग आ गए हैं। हम तो घर बैठ के, जहाँ पे सारे हमारे घर वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी तंग आ गए कि यार ये कब खत्म होगा। तो वो बड़ा मुश्किल एक सिनारियो है। Saying all that, then you have to look at the leaders of the pack. I think Abbas needs to bowl well. Abbas अगर फॉर्म में हुआ तो that will go a long way in मतलब bowling attack आपका stable रहने में, क्योंकि एक तो वो कंट्रोल करता है रन, और ऊपर से he is very very good in England. The other factor is that whichever spinner that plays, उसको overs काफी करने पड़ेंगे, क्योंकि you cannot depend on Naseem Shah to be bowling 20 overs a day. तो उसको ओवर्स काफी करने पड़ेंगे। शाहीन शाह का मैं इतना नहीं घबराता, बिकॉज द लास्ट 1 year और सो बहुत इम्प्रूव कर गया है, और उसने मतलब इफ यू हैड टू पिक वन बॉलर फॉर पाकिस्तान ओवर द लास्ट 12 months, वो तो शाहीन शाह ही होगा। बट स्पिनर यासिर शाह खेलता है, शादाब खेलता है, अब खबर तो आ रही है शायद दोनों खेलेंगे। दे नीड टू एक्चुअली कंट्रोल द रन्स रादर देन टेक विकेट्स, क्योंकि उनको सस्टेन करना है प्रेशर। आई थिंक पाकिस्तान अगर जाता है तीसरे चौथे दिन में स्टेइंग इन द मैच, तो फिर पाकिस्तान मैच जीत सकता है। अक्सर हमने जितने पाकिस्तान मैच इंग्लैंड से हारा है, तो वो पहले दूसरे दिन ही इतनी या डेफिसिट ना हो गया है या कोलैप्स ऐसे कर गए, तो वहीं से फिर वापस नहीं आया गया। तो द बॉलिंग यूनिट, आई थिंक द अब्बास एंड इफ यासिर शाह कैन, इनको लीडर्स बनना पड़ेगा। और इन लीडर्स मतलब ये नहीं कि टीम उड़ा दें, लेकिन ये जरूर के रन्स इतने आसानी से ना हो। मजर, अभी जो मैच हुआ था, ऑब्वियसली ओल्ड ट्रैफर्ड में बाकी मैचेस भी अभी हमने देखे होते रहे हैं, तो स्पिनर्स का कितना रोल नजर आया है या कितना, बिकॉज ऑब्वियसली वी लाइक बाजिद सेड, आई मीन वी आर हियरिंग देयर इज स्पेकुलेशन कि शायद 2 स्पिनर्स के साथ जाएं, एंड ऑफ कोर्स इफ इट्स शादाब, तो शादाब का तो ये एडेड एडवांटेज ये भी है कि वो he scores lower order runs which are very important. I mean that's how we won last time as well. You had contributions from Fahim and Shadab. देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन है कि पाकिस्तान 2 स्पिनर्स के साथ खेलेगा, और आई थिंक मेरे नजदीक तो काफी एक अनयूजुअल मूव है। मैनचेस्टर के बारे में कहा जाता है कि ये स्पिनर्स को थोड़ा असिस्ट करता है, लेकिन जो नंबर्स हैं वो इसके टोटली अगेंस्ट हैं। मैनचेस्टर में जो स्पिन बॉलर्स की एवरेज है लास्ट 10 years में, वो अराउंड 43 है, विच इज द सेकंड वर्स्ट फॉर एनी वेन्यू इन इंग्लैंड। नॉटिंघम की वर्स्ट है, और सिर्फ आई थिंक एक पॉइंट का डिफरेंस है। आई थिंक शायद ये परसेप्शन इस वजह से बनी हुई है कि 2000 में जो 10 साल थे, 2002 2010, उसमें स्पिनर्स ने काफी आउट किए थे, लेकिन इंटरेस्टिंगली 2010 के करीब जो है मैनचेस्टर का जो स्क्वायर है उसकी डायरेक्शन चेंज की गई थी, और स्टैट्स से ये लगता है कि शायद वो 2010 से पहले जो स्पिनर्स को एडवांटेज होता था वो रिसेंटली नहीं मिला। इवन दो आई नो कि रॉस्टन चेस ने अभी 5 आउट किए, और आई थिंक कि उस मैच को देखने के बाद शायद पाकिस्तान के ज़हन में ये ख्याल आया है कि ये 2 स्पिनर्स को खिलाएं। लेकिन उसमें जो बाजिद खान ने जो बात की है कि रन्स कंटेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर तो आपने दिल्ली के 40-50 ओवर्स लेग स्पिनर से करवाने हैं, तो वो यासिर शाह अकेले भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको दूसरा स्पिनर क्यों चाहिए, वो भी लेग स्पिनर? तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। आई थिंक कि पाकिस्तान को 4 सीमर्स के साथ खेलना चाहिए, और इसी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान 2018 में टेस्ट मैच जीता था लॉर्ड्स में। यासिर शाह तब इंजर्ड थे। द क्वेश्चन इज कि अगर आप फॉर एग्जांपल फहीम अशरफ अब आपके पास है स्क्वाड में, तो अब अगर आपने उसको ले आए हो, तो अब आप फिर उसको खिलाओ। लाइक दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, राइट? बिल्कुल। और मेरे ख्याल मेरे से ज्यादा तो आपने टेस्ट मैच देखा होगा, ज़ैनब तो बहुत गौर से टेस्ट मैच देखती है। जो ये मैनचेस्टर में टेस्ट मैच हुआ है, स्पिन जो हो रहा था वो पहले दिन ही हो रहा था, और जब वो स्पिन हो रहा था तब बॉल सीम भी कर रहा था। तो ये नहीं था कि
स्पिनर को हेल्प मिल रही है। वो शायद मॉइस्चर था या हम तो इतनी दूर बैठे हैं, बट रकीम कॉर्नवॉल और रोस्टन चेस का बॉल तब ही स्पिन हुआ है। जब आखिर में तो लास्ट डे तो फास्ट बॉलर्स ने विकेटें ली हैं। मुझे तो उल्टी, मतलब शायद मैं गलत हूँ, मैं बहुत दूर बैठा हूँ, मुझे तो लगा ऐसे कि साउथहैम्पटन में ज्यादा चांस है, क्योंकि वो बहुत ड्राई लग रही थी पिच, और लग ऐसे रहा था कि ये चौथे पांचवें दिन ज्यादा चांस है स्पिन करने का। लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड में 2 स्पिनर खिलाना बड़ी ऑड है, क्योंकि जहाँ पे इतना स्पिन हो रहा वहां पे ऑब्वियसली बॉल सीम हो रहा होगा, और जैसे जैसे मैच गुजरता रहा तो स्पिनर का रोल बिल्कुल खत्म हो गया। आपने देखा सेकंड इनिंग्स में, इवन व्हेन इंग्लैंड बैटेड या जब वेस्ट इंडीज ने बैटिंग की, तो स्पिनर का कुछ खास रोल नहीं था। बाकी रह गया फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ आप कह रही हैं कि उसको लेके गए तो उसको खिलाना ही है। अब एक और लड़के को भी आप लेके गए हैं तो उसको नहीं खिलाएंगे, तो वो एक केस है कि वो शायद अब खुदकुशी कर ले। फवाद आलम को आप लेके गए हैं, उसको पहले आपने नहीं खिलाया क्योंकि हारिस सोहेल खेलता था, अब आप उसको नहीं खिलाओगे क्योंकि 5 बैट्समैन खेलेंगे, तो वो कहाँ पे खेलेगा। अब ठीक है, मैं अग्री करता हूँ, यू नीड एन ऑलराउंडर, बट अगर आपका ऑलराउंडर डज नॉट गेट इनटू द टीम विद द बैट और विद द बॉल, एक उसका स्ट्रिंग ऐसा नहीं है कि वो टीम में पूरा उतरता है, तो देन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन ऑलराउंडर खिलाना जरूरी नहीं है। जब मिकी आतर कोच थे, आपको याद है, वो शादाब और फ़हीम अशरफ दोनों को खिलाते थे कि 2 प्लेयर से एक पूरा हो जाए। इस तरह तो बड़ा मुश्किल है। अगर फ़हीम अशरफ की बैटिंग डेवलप होती या इवन अगर उसकी बॉलिंग डेवलप होती उस तरह, अब तो टीम से बाहर है, हमें नहीं पता कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मगर उसकी अगर डेवलप होती देन यू कैड हैव कंसीडर्ड हिम एज एन ऑलराउंडर। इसमें सिर्फ एक चीज है कि हमारे बॉलर्स की उस तरह से फिटनेस शायद नहीं है कि वो इतने लंबे लंबे ओवर्स करा सकें एज कम्पेयर टू दी। आप देखें, अगर हमारे बॉलर्स को देखा जाए तो आप बल्कि बेहतर जानते हैं कि जो सेकंड और थर्ड स्पेल्स होते हैं, हमारी स्पीड भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, हमारी लथार्जी भी सामने आ जाती है। तो जब डू यू थिंक कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर यासर को खिला रहे हैं और उससे 20-30 ओवर हमने करा लिए हैं, तो डू यू थिंक इस तरह से तो फिर विकेट्स कौन लेगा? मेरा ये सवाल है ना। वो एक जो सस्टेन्ड प्रेशर है जो कि आपकी फिटनेस का भी टेस्ट होता है, वो विकेट्स कौन लेगा? लेकिन ये फिर आप टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट ना, कि आप कह रहे हो उनकी फिटनेस भी नहीं ठीक, वो बॉलिंग इतनी कर भी नहीं सकते, तो आपने एक ऐसा लड़का खिलाना है हु इज जस्ट मतलब सपोर्टिंग कास्ट है। यासिर शाह, आपको पता है कि यासिर शाह ओनली बॉल्स वेल जब उसको लंबे ओवर्स कराए जाएं। अगर आपके पास 5 बॉलर होंगे तो आई डोंट थिंक फिर आप यासिर शाह को ओवर इतने कराओगे। अगर आपने यासिर शाह को खिलाना है देन यू प्ले हिम एज अ फ्रंट लाइन स्पिनर। अगर आप शादाब के साथ भी उसको खिलाते हो जैसे मजहर ने कहा, तो ही विल नॉट गेट द अमाउंट ऑफ ओवर्स दैट ही नीड्स टू एक्चुअली बोल एज वेल एज ही कैन। बाजद कहीं ये तो नहीं है कि पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान हार गया, दूसरे में जी मोहम्मद आमिर रिवर्सेस हिज टेस्ट क्रिकेट की रिटायरमेंट एंड ही मेक्स रिटायर। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हाँ, वहाब रियाज तो आ गया ना 20 में, तो वो तो कोई टेंशन नहीं है। मतलब एक लड़का जो कहता है मैंने नहीं खेलना, उसको हम वापस ले आते हैं। जो लड़के कहते हैं हमें खेलना है, उनको हम लिफ्ट नहीं कराते। ये तो पाकिस्तान का मतलब कुछ भी हो सकता है। एक जो पॉइंट जो मजहर और आप शायद मिस कर गए, हमारे साथ उन्होंने बहुत काम किया, हम उनसे बहुत बड़े क्लोज भी हैं काफी। वो बॉलिंग कोच हैं वकार यूनुस। सोहेल खान ने कहा कि अभी सोहेल खान ने कहा कि मुझे मैं वकार यूनुस के पास गया और उनको मैंने बोला कि मुझे वो बॉल चाहिए जो लेट स्विंग हो, जिस तरह एंडरसन का बॉल होता है जो सीधा जाता है और एंड में जाके स्विंग होता है और गायब हो जाता है, वो मुझे चाहिए। तो वकार भाई ने उससे कोई 30 सेकंड बात की और फिर सोहेल खान का कहना है कि वो सीख गया और उसने इंट्रा स्क्वाड मैच में वो बॉलिंग की और वो उसका लेट स्विंग होने लग गया। तो अगर वकार भाई 30-30 सेकंड मतलब फ़हीम अशरफ और शाह मसूद पे भी लगा लें तो ये ऑलराउंडर वगैरह सब मसले हल हो जाएंगे। चले, ये सही सोल्यूशन है कि वी नीड वकार भाई के वो एक पेप टॉक दें जरा सबको, और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हमारे प्रॉब्लम्स जो है सारे सॉल्व हो जाएंगे।
बट we'll have to see. देखिए ये तो हमें पता है, ये तो जिसने भी पाकिस्तान क्रिकेट देखी है और फॉलो की है पता है कि जी जब पहला टेस्ट मैच अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान अगर हार जाता है तो उसके बाद चेंजेस तो होंगे ही होंगे. आपकी बॉलिंग लाइनअप में भी चेंजेस होंगे. हो सकता है like I said, there are so many possibilities. आपके पास सोहेल खान है, इमरान खान है, आमिर is also in the mix of things in the sense कि जी शायद उनको भी. So I mean there are so many possibilities इस तरह से. But what I want to ask you, Bazid, on a more serious note is like, you look at Mohammad Abbas and he's got 10 wickets I think in 2 games जो वहाँ उसने खेली है. And उनकी अगर bowling style देखा जाए या or if you look at what he brings to the table, you look at apart from the fact कि जी उनकी हल्की movement है, उनका जो immense immaculate control है. So do you think कि England में, do you think that control matters more as opposed to, let's say, raw pace? Yes, I think के conditions ऐसी हैं और ये देख रहे हैं. आप देखें आर्चर जितना भी उसने तेज बॉलिंग की है, I think Vokes is still a better bowler in England. उसका मतलब लेंथ से बॉल स्विंग भी होता है और एक्यूरेट भी है. उस तरह आर्चर इज अ ब्रिलियंट बॉलर, लेकिन बिकॉज पेस सिर्फ है और इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं है, और मे बी अभी खैर इट्स टू अर्ली, तो पेस वाज अ डिफरेंस है इन पेस ऑफ से आर्चर एंड वुड एंड देन वोक्स और इवन ये जो लेफ्ट आर्म करन. और बाजिद की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम वोक्स का रिकॉर्ड देखें, सिर्फ टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्रिकेट इन इंग्लैंड, तो वोक्स जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है इंग्लैंड में. और पाकिस्तान के खिलाफ भी लॉर्ड्स में उन्होंने, जो अगर आपको याद हो जाए ना, उन्होंने 10 आउट कर दिए थे, फिर बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं. तो आई थिंक के शायद इंग्लैंड जो है उनके जिम्मे ये चीजें होंगी. अच्छा बाजिद, द ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कोर्स, how does Pakistan negate the threat of Ben Stokes? मेरा ख्याल उस पे या तो उसको कोरोना करा दें या कोई और तो कोई. बेन स्टोक्स फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है. मतलब अगर आप, मुझे जो लगता है अगर आप 2 लेग स्पिनर खिलाएंगे और बेन स्टोक्स बैटिंग करने आ गया तो वो तो बॉल नहीं रोकेगा, तो बहुत डेंजरस. आई थिंक बेन स्टोक्स आपने देखा है कितना अच्छा खेल रहा है. आई थिंक जो इंग्लैंड पाकिस्तान से सीरीज अगर जीतता है तो आई थिंक स्टोक्स, रूट और ये बटलर, इनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस बहुत काउंट होगी. आई थिंक स्टोक्स तो खैर जो भी जहां पे भी 100 करेगा तो वो मैच जीत ही जाते हैं क्योंकि वो बहुत इम्पैक्टफुल है. आई थिंक उसकी बॉलिंग भी हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत पूरा बॉलर है वो भी. बट अब उसको किस तरह निगेट करना है ये तो मेरे ख्याल दुनिया के पास कोई आंसर नहीं है. ना वो व्हाइट बॉल में अभी निगेट हो रहा है, ना रेड बॉल में निगेट हो रहा है. शुरू में लाइक ऑल प्लेयर्स शुरू में ही उसको इशू है, लेकिन but what I'm asking is, does he have a real weakness, as for example like batting करते हुए, have you spotted something which you say कि हाँ जी यहाँ पे थोड़ा वीक है, इधर करानी चाहिए? देखिए अभी पिछले टेस्ट मैच में एक वो मैंने देखा, उस पे ना वो दिखा रहे थे पिछला साल, मतलब अब ये लेवल देखें उसका कि पिछला साल बेन स्टोक्स का अनबिलीवेबल रहा है. मतलब इतना अच्छा साल, और मतलब एनी अदर प्लेयर वुड कहता है कि बस इससे मतलब एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, सब कुछ ठीक है. बट ही वेंट बैक और उसने अपनी टेक्निक चेंज की है बिकॉज उसको लग रहा था कि क्योंकि वो थोड़ा शायद क्लोज्ड ऑफ था तो बॉल को एक्सेस नहीं कर सक रहा था. तो अब जो उसकी टेक्निक है वो थोड़ी सी इवॉल्व हो गई है. तो आप देखें कि विद अ ग्रेट प्लेयर, मतलब ये इवॉल्व करना बहुत जरूरी है. एंड इट्स नॉट जस्ट कि जब व्हेन यू आर नॉट डूइंग वेल. आई थिंक पिछला साल जो था, व्हेन मतलब आप वर्ल्ड कप विनर हो, आप सुपरस्टार हो, आप सारा कुछ हो, एशेज में आप इतना जबरदस्त 100 करते हो, उसके बाद मतलब आप फिर भी प्रोग्रेशन के लिए चेंज करते हो, तो ऑब्वियस वीकनेस तो अब निकालना तो बड़ा मुश्किल है. मे बी शुरू में जब वो आता है तो थोड़ा अब्बास का बॉल अगर पढ़ के बाहर निकले तो, लेकिन अगेन दैट हैज टू बी परफेक्ट लेंथ बाहर निकले. तो वहां पे रोच ने उसको वर्क ओवर किया था फ्रॉम राउंड द विकेट, लेकिन उसकी जो
सारी जो बॉलिंग जो वो एक ओवर जो उसने किया था वो ऑलमोस्ट परफेक्ट था, बाउंसर बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट था, प्लस उसका जो नेचुरली जो बॉल बाहर निकल रहा था वो बड़ा जबरदस्त था, और फिर जो जिसपे वो बोल्ड हुआ है, मतलब वो पूरी एज इन यू हैव टू bowl 3-4 really very very good overs to work him over. Speaking of Babar Azam, I mean, his evolution as a test player, not as a limited overs batsman, वो तो हमने देखी ही है. बादल जब वो शुरू में आए तो लोगों ने कहा कि जी ये टेस्ट प्लेयर नहीं है, he is not a test player. Obviously आपको पता है हमारे यहाँ पे तो people are very quick to make their judgments and draw conclusions based on वो. But then we saw like glimpses of brilliance in South Africa जब उन्होंने Steyn को attack किया. He's got 500s now. So you think he has evolved as a player? And I mean, how important is this series for him? Because England जिसे कहते हैं ना is the true test of a good batsman. हाँ, हम काफी चीजें हम भूल जाते हैं. हम ये भूल जाते हैं कि जब वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में आया तो उसका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था, एंड मतलब मजर ये कंफर्म करेगा, लेकिन उसके कोई ज्यादा 100 भी नहीं थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, सिर्फ 2 सेंचुरीज थी. 2 सेंचुरीज थी. तो वंस यू फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब आप लंबी क्रिकेट में लंबे रन्स करते हैं, देन यू एक्चुअली फाइंड आउट मोर अबाउट योर ओन बैटिंग. तो जब तक वो आप नहीं करते तो आपकी वो मतलब obviously you don't get better at it, और आपके अपना जो process of getting runs वो आपको अभी पता नहीं होता. I think the one major thing जो अब उसके टेस्ट मैचेस में बैटिंग में मुझे जो नजर आती है कि वो अब जाके, मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका में भी इतना नहीं किया था, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में इसने 100 किया वहां पे ये अपनी डिफेंस को ट्रस्ट करता था. मतलब जहां पे इसने बॉल छोड़ने होते थे तो बॉल छोड़ता भी था, और जहां पे मतलब फॉरवर्ड डिफेंस करना है या बॉल रोकना है तो वो उसको ट्रस्ट कर रहा था, which led to him getting that 100, which led to him getting the deliveries which he can score off. He can score off most deliveries, लेकिन शुरू में ये इसकी खुद कॉन्वर्सेशन में बात इसने की थी कि वनडे क्रिकेट में क्योंकि बल्ले पे बॉल लगता जाता है तो वो रिदम बनती रहती है, एंड बेसिकली आप हर बॉल को खेल रहे हो, और जब तक वो बैट पे लगी जा रहा है तो कॉन्फिडेंस बहाल रहता है. टेस्ट मैच की रिदम थोड़ी सी डिफरेंट होती है. आई थिंक नाउ ही इज डिस्कवर्ड दैट रिदम, और आई थिंक जिस तरह आपने कहा कि फाइनल शायद फ्रंटियर है इंग्लैंड इसके लिए, और ये बहुत बड़ा मतलब लास्ट टेस्ट होगा इसका एज एन कंप्लीट प्लेयर का. बट मेरे हिसाब से तो जो पिछले सीरीज में या ये गया था उससे ये मतलब 10 फोल्ड अब डेवलप कर गया है, बहुत उससे बेहतर प्लेयर हो गया है. आई थिंक नाउ ही हैज अ मच ग्रेटर चांस, मतलब हो सकता है कि ना सक्सीड करे, बट ही हैज अ ग्रेटर चांस टू सक्सीड. मजर कैसा रहा है बाबर का रिकॉर्ड इन इंग्लैंड ओवरऑल अगर देखा जाए? देखिए, इंग्लैंड में सिर्फ एक ही टेस्ट मैच वो खेले हैं 2018 में, उसमें 64 उन्होंने किया था, और वो एक्चुअली आउट नहीं हुए थे, उनको बॉल लग गई थी और उसके बाद वो सीरीज से बाहर हो गए थे. बड़ी जबरदस्त वो 64 की इनिंग्स थी लॉर्ड्स में, और फिर लीड्स में नहीं खेले और पाकिस्तान वो मैच हार गया. लेकिन उसके अलावा अगर हम वर्ल्ड कप में देखें, इवन दो कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट है, लेकिन जो वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है तो उसमें भी उन्होंने काफी एक्सेल किया. सेंचुरी की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और रिसेंटली उनका जो रिकॉर्ड है वो मतलब इनक्रेडिबल है. अभी जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें किसी भी बैट्समैन की एवरेज उनसे बेहतर नहीं है, और पिछले 5 मैचों में उनकी 4 सेंचुरीज हैं और एक 97 है. अगर वो एडिलेड में 97 पे ना आउट होते तो 5 मैचों में 5 सेंचुरीज होनी थी. और इवन जो उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट भी जो उन्होंने सेंचुरी की थी रावलपिंडी में, वो कोई मतलब आसान इनिंग्स नहीं थी, इवन दो कि प्रेशर नहीं था, लेकिन लास्ट डे था सिर्फ, और एक दिन के अंदर एक बैट्समैन अपने आप को ये चैलेंज करे कि मैंने 100 करना है. तो आई थिंक अभी तो बहुत जबरदस्त फॉर्म में है. सबसे जो बैड न्यूज जो हमें नजर आई है बाजिद, वो ये है कि there is forecast for rain on the first day, from what I saw in Manchester. And अभी एक recently हमने देखा था, when we talk about forecast, when you talk about rain, so the most important thing then that becomes is the toss actually. And we saw that in the first test match against against West Indies, that was one of the things that was being debated upon कि जी
बैटिंग करनी चाहिए थी, बॉलिंग करनी चाहिए थी. You know, England's perspective was कि नहीं जी, we want to be positive, and like that's one way of looking at things. And then of course there's another way of looking at it. Is नहीं जी, if there has been rain, if there is cloud cover, you know, you should go, you should bowl first. So I mean, how do you look at that, and how do you see अगर ऐसी situation आती है कि we do get some form of play in the day? What do you think a team should do in such a situation? देखिए, एज अ टूरिंग टीम लोगों ने बहुत जेसन होल्डर को क्रिटिसाइज किया कि जी ये बैटिंग क्यों नहीं करता पहले. लेकिन अगर मैं मैन टू मैन अभी अगर आप देखें तो शायद मजहर भी और आप भी शायद एग्री करें, लेकिन मजहर मेरे से एग्री नहीं करता काफी बातों पे. बट आप ऐसी सिचुएशन देखें कि जी ओवरकास्ट है और बॉल स्विंग कर रहा है और सीम कर रहा है, तो इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट शायद they might be able to survive. चांसेस पाकिस्तान के बैटिंग फर्स्ट चांसेस ज्यादा ये हैं कि उन कंडीशंस में पाकिस्तान को ज्यादा मसला हो सकता है. तो ब्रेव डिसीजन वो होता है कि which ends up winning you the game. और ये डिसीजन ले लेना कि जी तीसरे चौथे दिन ऐसे होगा वैसे होगा, तो जो अगर आप पहले दिन मैच आप जीत नहीं सकते लेकिन हार जरूर सकते हैं. तो आई थिंक कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे you're looking at के overcast conditions है और it will help the bowlers, तो I would always I prefer पाकिस्तान bowling first. और पाकिस्तान इंग्लैंड में जब जब जीता है तो मोस्टली ऐसे ही हुआ है कि या तो कुक ने टॉस जीत के बैटिंग कर ली है या फिर पहले बॉलिंग पाकिस्तान की वैसे ही आ गई है. तो अपार्ट फ्रॉम मे बी लॉर्ड्स, इंग्लैंड में कोई ऐसा पिच नहीं है जहाँ पे बाद में जाके बैटिंग मुश्किल हो जाए. इम्प्रूव ही होती है एंड ज़ाहिर आखिरी दिन कुछ मसला होता है. बट इफ द ओवरहेड कंडीशन सजेस्ट, देखिए एक और बात भी जो हम शायद भूल रहे हैं कि इस वेस्ट इंडीज टूर्नामेंट से मतलब वेस्ट इंडीज सीरीज से पहले बहुत डिस्कशन हो रही थी कि बॉल स्विंग होगा नहीं होगा, सलाइवा का इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, कि स्विंग होगा कि नहीं होगा. इंग्लैंड में ये सब रेलेवेंट नहीं है. इंग्लैंड में सिर्फ रेलेवेंट है कि एक तो ज़ाहिर पिचेस कंड्यूसिव है, ऊपर से ओवरहेड कंडीशंस. सो इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी, लोग कहते हैं नेगेटिव है, लेकिन आई थिंक it's better to bowl first than rather than test yourself and bat first और match खराब करने के. So let's hope for the best, and you know, I'm definitely optimistically giving at least one test to Pakistan. So let's see what happens. But thank you so much, guys. Bazid, to you and to Mazhar, thank you once again for your time, and it's goodbye.